हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे द वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर द रियल गैसेस एंड दैट विल डिफरेंट कंडीशंस विल गोइंग टू सी, दैट इज कोरिलेशन फॉर वॉल्यूम, what is compressibility factor, what is the critical phenomena, all the terms will going to understand in today's lecture only. ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं हमारे द टॉपिक दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर रियल गैसेस। ठीक है, नाउ सी गाइस, व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, करेक्ट ना? पीवी is equal to nRT. What is this P stand for? P यानी क्या गाइस? P यानी प्रेशर, V that is वॉल्यूम, N यानी क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? N यानी नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट? R गैस कांस्टेंट और उसकी वैल्यू क्या है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर 0.08205 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, एंड T इज द गिवन टेम्परेचर, बराबर है? सो आइडियल गैस that is PV is equal to nRT. So here the ideal gas is modified by the van der Waals equation, and that van der Waals equation is also called to be the PV is equal to nRT by replacing over here the volume as well as pressure. और जो रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड टू बी अ करेक्टेड वॉल्यूम एंड द करेक्टेड प्रेशर ओनली। ठीक है, सो वट एवर द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड ओवर हियर इन दिस इक्वेशन, उसको क्या कहेंगे हम लोग? करेक्टेड प्रेशर एंड सेकेंडली करेक्टेड volume. Okay, corrected pressure and the corrected volume, and this particular equation is actually known to be the van der Waals equation. उस equation को क्या कहेंगे हम लोग? van der Waals equation only. So PV is equal to nRT, ideal gas equation, now known to be the van der Waals equation because we are going to replace the pressure and volume terms by corrected pressure as well as करेक्टेड वॉल्यूम। अंडरस्टूड? किसे रिप्लेस करेंगे? करेक्टेड प्रेशर एज वेल एज करेक्टेड वॉल्यूम से, करेक्ट? सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन टू बी व्हाट? वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो अभी से हम इस इक्वेशन को किस तरह से याद रखेंगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वैन डर वाल्स इक्वेशन। नाउ चले जाते हैं फॉर द फर्स्ट टॉपिक फॉर दिस वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर द रियल गैसेस, दैट इज कोरिलेशन फॉर वॉल्यूम। ठीक है, एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या है और क्या टर्म हमें यूज करनी पड़ेगी टू रिप्रेजेंट द एक्चुअली करेक्टेड वॉल्यूम ओनली। ठीक है, और क्या डिफरेंस होता है बिटवीन टोटल वॉल्यूम एंड दैट एक्चुअल वॉल्यूम, दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, सो कोरिलेशन फॉर वॉल्यूम, correlation for volume. Okay guys, see, sorry, in ideal gas VI क्या रिप्रेजेंट करता है? the VI representing the ideal volume. ठीक है, generally if we take VI in ideal gas or ideal gas equation, actually VI representing ideal volume. ठीक है, this is representing what? Ideal volume. Okay, अब ideal volume, तो ideal volume हो जाएगा VI, that is for the ideal gas equation. But what about for the real gas? Okay, real gas के लिए क्या? In real gas generally the part of a total volume is occupied by the molecules of the gas. ठीक है, the part of the total volume, अगर एक कोई सिलेंडर में whatever will be the volume of the cylinder, so that total volume is occupied by the molecule of the gases only, and hence for their free movement, ठीक है, and hence for their free movement, क्योंकि real gases है तो free movement होगी वहां पे, so for their free movement the total volume available will be, or whatever the volume available will be represented as VI is not the same as that of a total volume that is V, but it is less than V. ठीक है, किससे होगा? V से कम होगा। अंडरस्टूड? आइडियल गैस में तो VI इज एक्चुअली रिलेटेड टू द आइडियल वॉल्यूम ओनली, बट रियल गैस में क्या है? टोटल वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू द this one, the actual volume. Understood? The total volume is not equal to the actual volume, and that's why VI is not the same as that of total volume V. Okay, V representing total volume and VI that is ideal volume, बराबर है? तो VI is not that same of total volume V. I'll write over here for real gases, huh? I'm talking about real gases only. So for real gases I'll write here VI is not the same as that of V, where Vi that is ideal volume and V representing guys
V रिप्रेजेंटिंग क्या, टोटल वॉल्यूम, बट एक्चुअली इट इज लेस देन V, बट इट इज लेस देन V, करेक्ट। अब दोनों में तो डिफरेंस है, वी आई एंड वी के बीच में तो डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या होगा एग्जैक्टली, वी आई जो आइडियल वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम वी ओवर हियर, बट वो उससे थोड़ा बहुत कम रहेगा, दैट इज लेस देन वी, सो देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन वी एंड वी आई। तो वो डिफरेंस क्या होगा, दैट ऑल्सो विल रिप्रेजेंट। ओके चलो समझ लो कि इफ बी रिप्रेजेंटिंग द इफेक्टिव वॉल्यूम, आई राइट हियर, इफ स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी representing effective volume, ओके बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंटिंग द इफेक्टिव वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स, ओके, विच इज ऑक्यूपाइड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, ओके। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज इफेक्टिव वॉल्यूम, वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, I'll write here occupied by 1 mole of gaseous molecules, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। बच्चों यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड वी आई, ओके, वी और वी आई के बीच में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, ये हम लोग यहाँ पे समझने की ट्राई कर रहे हैं, करेक्ट, बिकॉज वी आई रिप्रेजेंटिंग आइडियल वॉल्यूम एंड वी रिप्रेजेंटिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, एंड द वी आई is not the same as that of V, okay, ideal volume is not same as that of total volume but it is less than V, तो definitely दोनों में difference होगा, तो वो exactly difference क्या है, okay, वो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, करेक्ट। सो फॉर द आइडियल गैस ओनली समझ लो कि B रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्टिव वॉल्यूम, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंटिंग द इफेक्टिव वॉल्यूम which is occupied by 1 mole of a gaseous molecule, ठीक है, effective volume which is occupied by 1 mole of a दिस वन गैसियस मॉलिक्यूल, गाइस 1 मोल यानी कितना होगा, 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, अगर समझ लो हाइड्रोजन गैस H2, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है 2 ग्राम, ठीक है, या फिर 2 ग्राम पर मोल, सो 2 ग्राम अगर हम लोग गैस हाइड्रोजन गैस एक्सप्रेस वे करते हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा कितना 1 मोल ऑफ अ गैस, समझ में आ गया, ओके। या फिर CO2 गैस से समझ लो, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ CO2, 44 ग्राम पर मोल, तो 44 ग्राम CO2 हमने अगर वे कर लिया है, सो दैट रिप्रेजेंटिंग 1 मोल ऑफ अ गैस, बराबर है ना, ओके। सो 1 मोल ऑफ गैस यानी क्या, दैट इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ दैट गैसियस मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन है 1 मोल 2 ग्राम, CO2 1 मोल 44 ग्राम, अगर अमोनिया होगा तो दैट इज 17 ग्राम पर मोल। और गाइज 1 मोल में कितना एग्जैक्टली वॉल्यूम रहता है, ईच एंड एवरी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस, एंड व्हाट इज दैट नंबर ओनली, नंबर कितना है 22.4 लीटर, कितना है 22.4 लीटर। याद रखना 1 मोल का मास अलग अलग हो सकता है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मोलार मास ओनली, बट उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड टू बी अ मोलार वॉल्यूम, और वो होता है 22.4 dm क्यूब, या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप ml भी बोल सकते हो, ठीक है, 22.4 dm क्यूब या लीटर, 22400 cm क्यूब या फिर ml, अंडरस्टूड, ओके। सो दैट इज द व्हाट इज मोल, शायद यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ये 1 मोल क्या होता है, या फिर 1 मोल सब्सटेंस यानी क्या है, सो ये मैं एक्सप्रेस कर रहा था यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल के लिए, 1 मोल हम लोग सॉलिड और लिक्विड के लिए भी हम लोग ले सकते हैं, सेम दैट इज ओनली इक्वल टू मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड फॉर गैस ओनली 1 मोल में फिक्स वॉल्यूम रहेगा, उसको मोलार वॉल्यूम कहते हैं 22.4 dm क्यूब, और अगर सॉलिड सब्सटेंस है या फिर कोई भी स्टेट ऑफ मैटर रहेगा, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं 1 मोल सब्सटेंस में, फिक्स नंबर है, उसको हम लोग कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर, बराबर, कितना है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, कितने 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ओके गाइज। तो ये तो हो गया अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट इज गैस, सॉलिड और लिक्विड, ओके। चलो कहाँ पे थे हम लोग तो यहाँ पे बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंटिंग द इफेक्टिव वॉल्यूम which is occupied by 1 mole of a gas, ठीक है, इफेक्टिव वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे फॉर n मोल ऑफ द गैस, ठीक है, n मोल यानी कोई भी हो सकता है, 1 मोल हो सकता है, 2 मोल्स हो सकता है, 3 मोल्स हो सकता है, 4 मोल हो सकता है, 5 मोल्स ऑफ अ गैस, ओके। सो फॉर n मोल ऑफ द गैस द कोरिलेशन ऑफ वॉल्यूम
is termed by NB. Okay, the correlation in volume is termed by or termed to be NB only, where N stand for the number of moles of the gas and B that is effective volume. Okay, so here for just a minute. So for N moles of the gas, okay, for N moles of the gas, N moles of the gases, okay, N mole of the gases, the correlation in volume is given by correlation in volume is given by Vi is equal to V minus NB. अंडरस्टूड गाइस, ये इक्वेशन याद रखना है हमें, क्योंकि हम लोग देख रहे थे Vi आइडियल वॉल्यूम एंड V इज द टोटल वॉल्यूम. देयर इज द डिफरेंस बिटवीन Vi एंड V, ओके, बिकॉज टोटल वॉल्यूम आइडियल वॉल्यूम इज लेस देन द टोटल वॉल्यूम ओनली. तो वो जो डिफरेंस है दैट स्टैंड्स फॉर NB, जहाँ पे Vi आइडियल वॉल्यूम, V इज द टोटल वॉल्यूम एंड NB स्टैंड फॉर व्हाट? B इज द इफेक्टिव वॉल्यूम which is given by the 1 mole of a gas, and here N stand for number of moles. ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, the number of moles हो सकता है, N numbers. ठीक है, so N representing the number of moles, so वो क्या है? Number of moles of a gas, 1 mole, 2 mole, 3 mole and so on. Understood? So this is all about the correlation for the volume only. ठीक है, correlation for the volume, जहाँ पे Vi is definitely lesser than the actual volume and that difference is given by the NB. So Vi is equal to V minus NB. Vi ideal volume, V total volume, N number of moles and B is the effective volume. Understood? Okay, यहाँ पे B हम लोग बोल सकते हैं excluded volume और co volume. This B is also known to be excluded volume or the co volume. ओके, चलो यहाँ पे तो ये भी टॉपिक या फिर ये भी टर्म कंप्लीट हो गया, दैट इज कोरिलेशन फॉर द वॉल्यूम फॉर द आइडियल गैसेस. ओके, अब चले जाते हैं फॉर द वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिनोटेड बाय द साइन Z ओनली. ठीक है, सो विल सी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नाउ, द नेक्स्ट टर्म. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिनोटेड बाय साइन Z. ठीक है, चले जाते हैं डेफिनेशन से. मैथमेटिकली एक्चुअली डिफाइन करना है उसको. सी, इन रियल गैसेस द डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ठीक है, रियल गैस जो है, okay, which is deviated from the ideal behavior, that is actually expressed in terms of, you know, quantity, and that quantity is called to be compressibility factor only. ठीक है, so here I'll write over here in short, for real gases the deviation from ideal behavior, the deviation from ideal behavior is given by the quantity, is given by the quantity called compressibility factor. ठीक है, that quantity is called to be the compressibility factor only. Compressibility factor, and that compressibility factor is denoted by sign Z. ठीक है, and it is mathematically defined by the equation PV is equal to ZRT, sorry, ZNRT. PV is equal to ZNRT, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z is equal to PV upon NRT. Both equations are correct only. ठीक है, PV is equal to ZNRT or Z is equal to PV upon NRT. Okay, where the Z expressing what? The deviation of a real gas from the ideal behavior, and that is given by the compressibility factor Z, where P यानी क्या होगा guys? P यानी pressure, V volume है, Z यानी compressibility factor, N number of moles of the gas, R gas constant and T is the temperature. Correct? Okay, now if the gas is real gas only, ठीक है, अगर गैस रियल गैस है
So that real ideal gas, not real gas, if the gas is ideal gas, then that express the that obeys the ideal gas equation, which is PV is equal to nRT. Okay, so for ideal gases, PV is equal to nRT. If the gas obeys this equation, ideal gas equation, Z always be equal to unity. Z equal to unity means the ratio of PV by nRT is always equal to 1 only. Understood? The ratio of PV upon nRT always equal to 1. For what? For आइडियल गैस. तो Z इज इक्वल टू 1 आ गया तो वो पर्टिकुलर गैस आइडियल गैस है, ये समझना. अगर Z मोर देन 1 या फिर लेस देन 1 होगा, सो दैट गैस इज नॉट द आइडियल गैस बट इट इज कॉल्ड टू बी अ रियल गैस. इट डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर वी कैन से. ठीक है, तो Z क्वांटिटी या फिर Z फैक्टर से, फिर Z की वैल्यू से हम लोग पता चल पाएगा कि वो गैस पर्टिकुलरली रियल गैस है या फिर आइडियल गैस है. क्योंकि आइडियल गैस के लिए क्या होगा, Z इज इक्वल टू यूनिटी, यानी Z इज इक्वल टू 1 होगा. अंडरस्टूड? एंड अगर उससे ज़्यादा या कम क्वांटिटी आ गया या फिर कम वैल्यू आ गया तो फिर वो गैस क्या होगा, इट इज़ नॉट द आइडियल गैस बट इट इज़ डिविएटेड फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एंड इज कॉल्ड टू बी अ रियल गैसेस ओनली. अंडरस्टूड? सो टू आइडेंटिफाई द गैसेस वेदर इट इज आइडियल और रियल, Z प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर. ठीक है, Z क्या प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल. सो जो एक्चुअली हमें बता रहा है कि डिविएशन हुआ कि नहीं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. अंडरस्टूड? वो हमें क्या बता रहा है कि डिविएशन हुआ कि नहीं फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर फॉर एनी पर्टिकुलर गैस ओनली. दैट इज कॉल्ड टू बी अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं. फिर एक और टर्म आज के लेक्चर में पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल फेनोमेना. इस चैप्टर का नाम ही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड क्रिटिकल फेनोमेना. सो विल सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हम लोग अभी तक नंबर ऑफ वीडियोस में पढ़े. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ion dipole interaction, dispersion force, and the different gases express that intermolecular forces only. ठीक है, but यहाँ पे we'll going to see what is that this critical phenomena is. ठीक है, critical phenomena. Okay guys, now critical phenomena में we will going to see few conditions. Okay, for the ideal behavior that condition should be matched. At the same time this particular phenomena also express कि when the gas turns into the liquid. ठीक है, और उसके लिए क्या conditions होनी चाहिए gaseous molecule liquid में convert करने के लिए. ठीक है, what should be the conditions that we'll going to see over here in this critical phenomena, and that temperature or pressure is actually called to be a critical temperature as well as critical pressure. टेम्परेचर अगर फैक्टर वही होगा, उस टेम्परेचर पे अगर गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड टू बी ए क्रिटिकल टेम्परेचर. और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, प्रेशर पे सॉरी, अगर वो टर्न होता है इनटू द लिक्विड स्टेट, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ क्रिटिकल प्रेशर. सो दैट ओनली विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ठीक है, सो इफ वी कंसीडर कि द गैस टू बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, अगर गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, फ्यू कंडीशंस शुड बी टू बी मेट विथ, like say I'll write first of all, if gas should converted into liquid, following conditions should be should be satisfied by the for the gaseous molecule only. Okay, so वो conditions कौन सा है? Number 1, the attraction forces between the gaseous molecule must be increases. जब गैस पार्टिकल के अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी गैसेस मॉलिक्यूल क्लोजर आएंगे, क्योंकि वी ऑल नो दैट इन गैसेस मॉलिक्यूल नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेरी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर. दैट्स व्हाई द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर रहते. जैसे ही वो मॉलिक्यूल थोड़े से क्लोज आ गए, ठीक है, व्हाट विल हैपन, दैट पार्टिकल्स विच इज प्रेजेंट इनिशियली इन द गैसेस स्टेट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट में फिर और पार्टिकल्स क्लोज आ जाता है तो लिक्विड विल टर्न्स इनटू दी सॉलिड. बराबर है? ओके, सो पहली कंडीशन जो होनी चाहिए वो है कि द अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल मस्ट बी इंक्रीजेस. ठीक है, आई विल राइट हियर अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज्ड और इंक्रीजेस. अट्रैक्शन इंक्रीज होना चाहिए गाइस. जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस पार्टिकल विल कम क्लोजर एंड देन
देयर विल बी अ चांस ऑफ कन्वर्टिंग दैट गैस इनटू द लिक्विड। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज और सेकंड कंडीशन शुड बी मेट विद बाय द गैसेस मॉलिक्यूल इज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल मस्ट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, वेलोसिटी द रैंडम मोमेंट है वो उनका कम होना चाहिए। द वेलोसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल शुड बी रिड्यूस्ड। देखो गाइस, दो चीजें होनी है। एक तो क्या, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईलाइट कर लेते हैं इसको, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना है, करेक्ट। एंड सेकेंडली वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इंक्रीजेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल एंड वेलोसिटीज between the gaseous molecules that should be decreased, that should be reduced। ठीक है, तभी फिर वहां पे एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल कैन बी रिड्यूस। और अगर एनर्जी रिडक्शन हो गया तो वहां पे डेफिनेटली द गैस विल टर्न्स इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, द गैस विल टर्न इनटू द लिक्विड स्टेट। अब ये दो चीजें अगर मिल गई तो क्या हो जाएगा, दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन reduction of energy of the gaseous molecule। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एनर्जी विद द ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया एंड वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी ऑफ द रिडक्शन गैसेस मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस। ठीक है, एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस। ओके, नाउ टू और कंडीशंस आ जाते हैं इसके साथ, दैट any particular gaseous molecule should meet with these two conditions to convert that gas into the liquid। पहला तो है, in the first condition, the first condition is increasing the pressure and the second one is cooling। okay, the second condition is cooling because of lower temperature। एक तो होना चाहिए increasing of the pressure, this one pressure and reducing the temperature, that is the two thing। अगर ये दो चीजें मिल जाएगी इसके साथ, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, विद दैट ओनली दो चीजें क्या है, दैट फोर्स ऑफ दिस वन प्रेशर शुड बी इंक्रीज एंड टेम्परेचर शुड बी डिक्रीजेस। ठीक है, क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर एंड सेकेंड कंडीशन क्या है गाइस, डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर ये दो चीजें मिल गई, डेफिनेटली ये हम लोग अगर अप्लाई करेंगे तो दिस टू थिंग्स विल गोइंग टू बी इंक्रीजेस। अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो गैसेस मॉलिक्यूल विल बिकम क्लोजर एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज कर लिया तो वेलोसिटी डेफिनेटली डिक्रीज होने ही वाली है एक्चुअली, बराबर है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि द गैस कैन टर्न्स इनटू द लिक्विड वन, the gas can turn into liquid one and that temperature and pressure is called to be the critical temperature and this the phenomena is actually called to be the critical phenomena only। बराबर है। So the temperature and pressure play the important role over here to convert this liquid into the gas into the liquid over here। ठीक है, temperature and pressure, क्योंकि critical temperature critical pressure है, ये actually play important role to convert गैस इनटू दी लिक्विड स्टेट ओनली। ठीक है, गैस इनटू दी लिक्विड स्टेट। यहां पे गाइज क्या होगी कि कंडीशन हमने ये सेटिस्फाइड कर ली, क्या, इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, टेम्परेचर कम कर देना, डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी उसको द गैसेस मॉलिक्यूल शुड बी कूल। ओके, एंड ड्यू टू दैट बिकॉज ऑफ दैट लोअर टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल विल गोइंग टू फॉल। वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, बराबर है। लोअर द टेम्परेचर वेलोसिटी विल गोइंग टू फॉल, बराबर। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ चांस ऑफ कन्वर्टिंग दैट गैस इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब कौन से गैस है जो कि इजीली लिक्विफाइड होते हैं, कौन से गैस है इजीली लिक्विफाइड नहीं होते, दैट आल्सो विल सी ओवर हियर। ठीक है, सम एग्जांपल्स विल गोइंग टू सी ओवर हियर। सी द गैसेस लाइक CO2, SO2, NH3, okay, easily liquefied by simultaneously increasing of pressure and lowering of temperature। कौन कौन से गैस मैंने बताया, CO2 है, ठीक है, SO2 गैस है, even NH3 gas, that is ammonia gas, this is going to be liquefied easily by simultaneous increase of pressure and decrease of temperature। okay, converted into liquid by increasing
प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हम लोग करते रहे, कौन सी, प्रेशर इंक्रीज करते रहे और टेम्परेचर को फॉल डाउन करे, व्हाट विल हैपन, the CO2 gas or SO2 gas or ammonia gas can turn into the liquid state. Now there are some gases which could not be liquefied even at high pressure, 300 के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले ले तो भी वो लिक्विफाइड नहीं होंगे, जैसे कि द गैसेस लाइक H2, हाइड्रोजन गैस, देन ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, O2, नाइट्रोजन गैस, इवन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। ठीक है, CO, N2, H2, O2, these are the gases could not be liquefied easily. Even the pressure increase up to 300 atmospheric pressure. Even pressure increases up to how much, 300 atm प्रेशर, यानी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो ऐसे गैसेस है जो कि 300 से ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर ले तो भी वो गैस स्टेट में ही रहेंगे, cannot be turned into the liquid state. This particular gases are actually called to be a permanent gases. इनको एक स्पेशल टर्म दिया गया है, that are called to be permanent gases. ठीक है, these gases are called to be permanent gases. क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर लो और टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लो तो चांस हो सकता है कि गैस कैन टर्न्स इनटू द लिक्विड। बट ऐसे भी गैस है नेचर में जो कि वो गैसेस स्टेट में ही रहेंगे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज करने के बाद भी, तो उन पर्टिकुलर गैसेस को हम लोग कहते हैं परमानेंट गैसेस। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट द गाइस क्रिटिकल फेनोमेना। क्रिटिकल फेनोमेना इज रिलेटेड विद द टू टर्म्स गाइस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड वेदर दैट गैस इज इजीली लिक्विफाइड और डिफिकल्ट टू लिक्विफाइड। आई रिपीट गाइस, वेदर दैट गैस इज इजीली लिक्विफाइड और डिफिकल्ट टू लिक्विफाइड। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड दैट वी अंडरस्टैंड ओवर हियर इन दिस क्रिटिकल फेनोमेना ओनली। ठीक है गाइस, आज के लेक्चर में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और फैक्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, आई थिंक सो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सो तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।